Good morning, student. I am Miss Seema Patel. So today we'll see the topic that is torch infections. So it is already known that if any kind of infection is present in the women during the pregnancy time, so it is very harmful for the baby or the fetus. So it is very important to treat the any kind of infection present in the women during the pregnancy time to save the life of the fetus. Okay, so we'll see what is the torch infection, which is complicating the pregnancy condition. So the capsulization torch consists of, that is T for toxoplasmosis, O for other infections, in that syphilis, varicella zoster, parvovirus B19 and hepatitis B, and R for rubella, C for cytomegalovirus, and H for herpes simplex virus. Okay, so these all are the torch infections. So we'll see one by one. So first is the toxoplasmosis. Toxoplasmosis is the second leading cause of death from the foodborne illness in the United States. Okay, means because of toxoplasmosis infection, it is mostly causing death of the fetus. Okay, it is a second leading cause of death from the foodborne illness in the United States. Then toxoplasmosis is a disease caused by an intracellular parasite, that is Toxoplasma gondii. That means the causative organism of toxoplasmosis is the Toxoplasma gondii, and human acquisition of the infection occurs by, okay, means human में कैसे या फिर human कैसे acquire करते हैं ये infection, we'll see. First is oocyst contaminated soil, salads and the vegetables. Okay, means बहुत सारे अगर कंटामिनेटेड सॉइल हैं या फिर सैलेड्स या फिर वेजिटेबल्स हैं, एंड oocyst दैट मीन्स अ cyst कंटेनिंग अ जायगोट. ठीक है, तो अगर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के oocyst अगर प्रेजेंट हैं इन द सॉइल और इन द सैलेड्स और द वेजिटेबल, एंड इफ द women is ingesting this kind of things, so the women get infection. And ingestion of raw or the undercooked meat containing tissue cyst like in the sheep, pigs and the rabbits are the most common meat sources. Okay, means if any woman is taking undercooked meat during the pregnancy time, which is containing the tissue cyst of the Toxoplasma gondii parasites, okay, so the women get the toxoplasmosis infection, and the common source of meat are sheep, pigs and the rabbits. Then outbreaks of toxoplasmosis have also been linked to the consumption of unfiltered waters. Means sometimes if the woman is taking unfiltered water, ठीक है, unfiltered water के consumption के कारण भी क्या हो सकता है, toxoplasmosis हो सकता है. Here you can see that a fetus may contract toxoplasmosis through the placental connection with its infected mother. Means if the woman is infected or the pregnant woman is infected with the toxoplasmosis infection, so through the placental circulation it will spread to the fetus also, and the mother may be infected by the improper handling of the cat litter. Cat litter that means cat's feces collection box. So if the woman is handling improper of a cat litter, so it will also cause the toxoplasmosis, and handling or ingestion of the contaminated meat. Okay, so here you can see in the cycle that oocyst contaminating cat litter, then feces oocyte, okay, and in the oocytes on the unwashed fruits and vegetable, then soil, water and grass contaminated with oocyst, then oocyst ingested by animals, and tissue cyst containing bradygioids in prey. Okay, so this all kinds of oocyst or any kind of infection is present in the women, so it will tachygioids transmitted transplacentally to the fetus. Means it can directly spread or transmit to the fetus by the transplacental circulation, and it will cause many kind of congenital abnormalities in the fetus. Then sign and symptoms. Infected pregnant women visually no clinical मैनिफेस्टेशन. मीन्स इसमें जो प्रेग्नेंट women हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं विद द टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो उनमें किसी भी टाइप का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो नहीं होता है. And although some may have a mild mononucleosis like syndrome, regional lymphadenopathy or occasionally
chorioretinitis. Okay, so here the word mild mononucleosis. Mononucleosis like syndrome, that means it's one kind of an abnormal high proportion of the monocytes in the blood that is associated with the glandular fever. Okay, so this kind of syndrome in the mother it will be present. And regional lymphadenopathy, that means abnormal size and consistency of the lymph node. And then occasionally chorioretinitis, that means the inflammation of the choroid or the retina of the eye. So sometimes this kind of mild symptoms may be present. And similarly, infected neonates are usually asymptomatic at birth. Sometimes if the mother is infected with toxoplasmosis, so उसके जो infants रहते हैं या फिर neonates जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, asymptomatic रहते हैं at the birth time. Then manifestation may include, कौन कौन से और मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं इन द फीटस. तो फर्स्ट इज द प्रीमेच्योरिटी, टर्म कंप्लीट होने से पहले ही बर्थ हो जाएगा. देन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, देन जॉन्डिस हो सकता है. एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगाली means the increase in size of the liver and spleen. And myocarditis, that means inflammation of the myocardium. Pneumonitis, that means it is also the inflammation of the lung tissues. And then various stresses may be present, and anemia, thrombocytopenia, and abnormal CSF, that means cerebrospinal fluid finding, that is mononuclear CSF, pleocytosis or elevated CSF protein. Okay, pleocytosis, that means present an abnormally large number of lymphocytes in the cerebrospinal fluid. Okay, so this kind of manifestation may be present. Then the classic triad of findings, the main classic triad means the sign symptoms of the toxoplasmosis disease or infection is, first is chorioretinitis, as I previously told you that it means the inflammation of the choroid and the retina of the eye. And then sometimes it will cause the hydrocephalus, means the collection of fluid in the skull of the baby. And intracranial calcification, that means it is the hardening of the tissues because of the deposition of calcium carbonate within the brain parenchyma. ठीक है, तो अगर वहाँ के टिश्यूज बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं या फिर समटाइम्स जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं, ठीक है, वो डिपोजिट हो जाते हैं इन दी ब्रेन पेरेन्काइमल लेयर. So this kind of classic triad of findings may be present with the toxoplasmosis infection. Here you can see in the image that baby's head is very large, that is showing the hydrocephalus. And in the eye means the inflammation of the choroid and retina may be present in the baby. Okay, so this kind of symptoms will be present. Here you can see that retinal scar linked with the vitreous strand in the congenital toxoplasmosis, means it is showing the inflammation of the choroid and the retina of the eye. Then how we can diagnose the toxoplasmosis condition? So serial immunoglobulin measurement for the maternal infection, means maternal infection को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरियल इम्यूनोग्लोबुलिन जी का मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, और इन दी फीटल इन्फेक्शन एमनियोटिक फ्लूइड PCR, that is a test used to detect the presence of any antigen rather than the antibodies. ठीक है, मतलब PCR जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको बोला जाता है, तो हम एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेके उसका PCR टेस्ट करते हैं फॉर नोइंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, तो ये मेनली हम क्यों यूज करते हैं, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. देन सीरोलॉजिकल testing, brain imaging, cerebrospinal fluid analysis, and ophthalmologic evaluation for the neonatal infection. So this kind of test will do or diagnostic test like the serological test करेंगे, brain imaging, then cerebrospinal fluid analysis, and ophthalmologic evaluation for evaluating the choroid and the retina. That all investigation is done for the neonatal infections. And PCR testing of various body fluids or the tissues. ठीक है, हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो वेरियस बॉडी फ्लूइड्स एंड द टिश्यूज को लेकर भी करते हैं टू फाइंड आउट द अर्ली कंडीशन ऑफ द टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन.
Then the treatment for the toxoplasmosis is in pregnant women with an established recent infection, स्पैरामाइसिन 3 ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोसेज शुड बी गिवन। ठीक है, तो अगर प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर उनमें रिसेंटली कोई इन्फेक्शन हुआ है विद द टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम स्पैरामाइसिन ड्रग देते हैं, दैट इज 3 ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोजेस। ठीक है, और ये जो है वन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक एंड एंटी पैरासाइटिक ड्रग है। एंड इन नियोनेट्स पैरीमेथाजिन दैट इज गिवन 50 mg ट्वाइस डेली फॉर 2 days देन 50 mg डेली। ठीक है, पैरीमेथाजिन जो ड्रग है वो भी एंटी पैरासाइटिक है, जो विजुअली हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन जो रहता है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। इसका जो डोज है 50 mg ट्वाइस डेली फॉर 2 days है। देन प्लस और क्या ड्रग देंगे, सल्फाडाइजिन 75 mg पर केजी डेली in 2 divided doses for 2 days then 50 mg per kg twice daily। ठीक है, सल्फाडाइजिन जो ड्रग है वो भी वन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग है, जिसको हम पहले 75 mg पर केजी पर डेली के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, देन फॉर 2 days एंड देन जो रिपीटेड डोज रहता है उसमें हम 50 mg प्रोवाइड करते हैं। देन प्लस फोलिनिक एसिड दैट इज दी इट्स वन काइंड ऑफ आल्सो नोन एज द ल्यूकोवरिन। ठीक है, फोलिनिक एसिड इज ऑल्सो known as the leucovorin drug and it is one kind of antidote for the folic acid and which is given 10 to 20 mg daily to the baby। Okay, so then this all about the toxoplasmosis infection। Then next disease we'll see, that is rubella। A woman infected with rubella during the first 3 months of the pregnancy has up to a 90% chance of giving the birth to a baby with the congenital rubella syndrome or her baby may not survive। Okay, means अगर कोई भी women जो है infected है with the rubella इन्फेक्शन फॉर द फर्स्ट 3 month ऑफ द प्रेगनेंसी, मीन्स अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी विमेन को अगर रूबेला इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में 90% ये चांसेस रहता है कि वो जो भी बेबी को बर्थ देगी, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, उसमें कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम प्रेजेंट रहेगा और समटाइम्स बेबी भी प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाता है। So it is caused by rubella virus, that is rubivirus genus and the family Togaviridae। ठीक है, तो ये कौन से इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रूबेला वायरस का, वो क्या है, रूबीवायरस जीनस का है और ये फैमिली टोगाविरिडी से बिलोंग करता है। एंड इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन विथ रूबेला वायरस इज रिफर्ड टू एज कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन और दी सिंड्रोम। सो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन जो होता है रूबेला वायरस से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन और दी सिंड्रोम। देन इन्फेक्शन विद दी रूबेला अर्लियर इन दी प्रेगनेंसी लाइक इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉजेज दी वर्स प्रोग्नोसिस एंड दी नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो अगर अर्ली प्रेगनेंसी या फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अगर उस टाइम पे इन्फेक्शन हुआ है रूबेला का, तो इसका जो प्रोग्नोसिस बहुत ही वर्स रहता है, मीन्स इसमें न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे और समटाइम्स बेबी का डेथ भी हो जाता है। एंड द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा एंड इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, एबॉर्शंस एंड द स्टिल बर्थ्स। ठीक है, तो वायरस क्या हो सकता है, वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस, मीन्स दी ट्रांसप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो रहता है उसके थ्रू वो फीटस में भी स्प्रेड हो सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है। एंड इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग दी सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट। ठीक है, बेबी में किसी भी टाइप का कंजेनाइटल डिफेक्ट वो कॉज कर सकता है एंड समटाइम्स इट विल लीड टू दी एबॉर्शंस कंडीशन ऑल्सो एंड स्टिल बर्थ्स। Then in the baby, infection in weeks 8 to 10 of pregnancy results in damage in up to the 90% of surviving infants and multiple defects are then common। ठीक है, मीन्स अगर इन्फेक्शन जो है वो 8 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन में अगर हुआ है तो इससे क्या रहता है कि 90% ऑफ जो इन्फेंट है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। इसमें सर्वाइविंग रेट भी बहुत कम रहता है और अगर इन केस बेबी सर्वाइव भी कर रहा है तो उसमें मल्टीपल डिफेक्ट जो है प्रेजेंट रहेंगे। एंड द रिस्क ऑफ डैमेज रिड्यूसेस टू दी 10 to 20% इफ द इन्फेक्शन इज इन वीक 11 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और अगर जो है रूबेला इन्फेक्शन वो 11 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन में हुआ है, ठीक है, और वो ट्रांसप्लेसेंटल सर्कुलेशन के थ्रू अगर फीटस में पहुंच गया है तो इससे जो है रिस्क ऑफ डैमेज रिड्यूस हो जाता है टू दी 10 to 20%। ठीक है, जैसे हमारा 8 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या हो रहा था, 90% वो अफेक्ट कर रहे थे बेबी के कंडीशन को,
बट अगर 11 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हुआ है सो दैट विल रिड्यूस द डैमेज टू द 10 to 20%. एंड फीटल डैमेज इज रेयर ओवर 18 वीक ऑफ जेस्टेशन. ठीक है, तो इसमें फीटल डैमेज भी बहुत रेयर होता है अगर जो इन्फेक्शन है रूबेला इन्फेक्शन अगर वो 18th वीक ऑफ जेस्टेशन में प्रेजेंट है विमेन में और वो ट्रांसफर हुआ है टू दी फीटस. ठीक है, तो इसमें फीटल डैमेज बहुत ही रेयर रहता है. देन ट्रांसमिशन टू द फीटस अकर्स वाया दी मैटरनल हिमेटोजीनस स्प्रेड टू दी प्लेसेंटा. ठीक है, इसमें रूबेला इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है बाय दी मैटरनल हिमेटोजीनस स्प्रेड और वो ट्रांस प्लेसेंटा सर्कुलेशन के थ्रू फीटस में पहुंच जाएगा. एंड इट टिपिकली अकर्स 5 to 7 days आफ्टर द मैटरनल इनोक्यूलेशन. Okay, inoculation that means vaccine or the immunization. Okay, so 5 to 7 days after maternal inoculation it will sometimes occur, and after the virus invades the placental barrier it is spread throughout the fetus via their वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो जब कभी भी वायरस जो है इन्वेड कर देता है प्लेसेंटल बैरियर को तो ये जो है पूरा स्प्रेड हो जाता है इन द फीटस एरिया एंड देयर वास्कुलर सिस्टम ऑल्सो. एंड द कंजेनाइटल डिफेक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन इज सेकेंडरी टू द साइटोपैथिकल डैमेज ensued to the blood vessels. Okay, ensued that means that is happen or arise in the blood vessels also. मीन्स अगर इन्फेक्शन के कारण कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हुआ है तो ये सेकेंडरी टू साइटोपैथिकल डैमेज कॉज करता है, मतलब जितने भी बॉडीज टिश्यूज हैं उसको भी वो डैमेज करेगा. एंड ऑल्सो इट विल अराइज और हैपन टू दी ब्लड वेसल्स ऑल्सो, एंड दिस इन टर्न रिजल्ट इन इस्चेमिया ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन्स. ठीक है, और इसके कारण जितने भी अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं उसमें भी प्रॉपरली ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है. Then the clinical features of the rubella virus infection is transient, that is intrauterine growth restriction होगा क्योंकि डैमेज हो रहा है इन द अर्लियर प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण ग्रोथ भी कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बेबी का. एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. थ्रोम्बोसाइटेनिक परप्यूरा दैट मीन्स दी ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग इन दी स्मॉल ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो इसमें क्या दिखेगा 25% केसेस में ब्लूबेरी स्किन दिखता है बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, जितने भी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्लॉटिंग फॉर्म हो जाएंगे. एंड हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, देन जॉन्डिस विच इज वेरी कॉमन इन द रूबेला इन्फेक्शन. एंड रेडियोल्यूसेंट बोन डिजीज it is also present in 20% cases. And meningoencephalitis. Meningoencephalitis that means the inflammation of the brain and surrounding tissues because of rubella infection which is also present in 25% cases. And neurological sequelae. Neurological sequelae that means the complication involving the central nervous system like the cognitive, sensitive and motor deficit. Means if the baby will be born with the neurological sequelae, so in that kind of baby there will be lacking of cognitive, sensitive or the motor deficit. Then developmental sensory neural deafness that is 80%. Sensory neural deafness that means completely the baby can't able to hear properly, means the damage of the inner ear will be present in 80% of cases. And general learning disabilities that is present in 55%, means baby में properly जो है जो learning ability रहती है वो भी completely loss हो जाएगी. And insulin dependent diabetes in 20%, immune mediated but often delayed to adolescent or adulthood. ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ इम्यून मीडिएटेड एंड समटाइम्स इट विल डिले और कॉजिंग डिले इन द एडोलेसेंट और द एडल्टहुड पीरियड ऑल्सो. एंड लेट ऑनसेट डिजीज एट 3 to 12 months with rashes और दी डायरिया, न्यूमोनाइटिस एंड दी हाई मोर्टैलिटी. ठीक है, अगर लेट ऑनसेट डिसीज हुआ है इन दी 3 to 12 month तो उसके कारण उसमें रैशेस हो सकते हैं, बेबी में डायरिया हो सकता है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी लंग टिश्यूज एंड दी हाई मोर्टैलिटी रेट भी रहेगा. देन लास्ट आता है आपका परमानेंट. ठीक है, परमानेंट क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं इन दी नियोनेट. सो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो सकता है जैसे कॉमनली पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है,
PDA और पेरीफेरल पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, ये 2 कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। एंड आई डिफेक्ट्स इंक्लूडिंग दी कैटरैक्ट्स हो सकता है, कंजेनाइटल ग्लाउकोमा, पिगमेंटरी रेटिनोपैथी एंड 50% सो कॉल्ड सॉल्ट एंड पीपर, सीवियर मायोपिया हो सकता है, दैट मीन्स नियर साइटेडनेस एंड माइक्रोथेल्मिया। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे मतलब आई डिफेक्ट्स हो सकते हैं इफ द रूबेला इन्फेक्शन इज ट्रांसमिट टू दी फीटस। एंड माइक्रोसिफेली, ठीक है, माइक्रोसिफेली में क्या होता है कि हेड का जो साइज है, जो नॉर्मल साइज रहता है उससे बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है। Here you can see that normal head size, ठीक है, नॉर्मल हेड साइज है और बेबी का। एंड माइक्रोसिफेली में क्या है, उसका जो स्कल का साइज है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। एंड रूबेला सिंड्रोम में मेनली क्या क्या होता है, माइक्रोसिफेली होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस रहता है एंड कैटरैक्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं अगर किसी भी बेबी में रूबेला इन्फेक्शन हुआ है तो। Then lab test for the rubella infections are isolation of the rubella virus in the culture. Okay, means culture sensitivity test करेंगे रूबेला वायरस का। एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रूबेला स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज। ठीक है, अगर उसमें प्रॉपरली लैब टेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, रूबेला स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडीज वहाँ पे फाइंड आउट होगा। एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रूबेला स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज दैट परसिस्ट एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेयर पैसिव ट्रांसफर ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडीज। मीन्स जब कभी भी हम लैब टेस्ट करते हैं और जो स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है इन दी सीरम, ठीक है, अगर ये लॉन्ग टाइम तक है या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि बेबी में जो है रूबेला इन्फेक्शन वो पैसिव ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी से हुआ है। ठीक है, मतलब पैसिव ट्रांसफर, क्योंकि सबको पता है कि सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन जी यही सिर्फ जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में ट्रांसफर हो सकता है। मीन्स जो भी इन्फेक्शन है वो रूबेला इन्फेक्शन वो जो है इम्यूनोग्लोबिन जी के साथ एसोसिएट होके वो बेबी में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ट्रांसफर में बी that the infection may be transferred by the passive transfer of the maternal antibodies, that is immunoglobulin G, and detection of rubella virus RNA by the reverse transcriptase polymerase chain reaction। ठीक है, अब रूबेला वायरस का कैसे हम डिटेक्शन करेंगे, जो भी RNA रहते हैं जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज PCR टेस्ट, इसके थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इसका ट्रीटमेंट है सपोर्टिव केयर एंड सर्विलेंस इज द ओनली रिकमेंडेड ऑप्शन अवेलेबल एट दिस टाइम। ठीक है, तो प्रॉपरली हमको सपोर्टिव केयर देना है पेशेंट को और सर्विलेंस करना है फ्रॉम दी अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। एंड क्लोज मॉनिटरिंग within the first 6 to 12 months of life is recommended and particularly for the evaluation of hearing impairment। ठीक है, हमको क्लोज मॉनिटरिंग करना है फ्रॉम द 6 to 12 month ऑफ प्रेगनेंसी टाइम के। एंड द इवेल्युएशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, हमको कंटिन्यूसली ये भी फाइंड आउट करना है बेबी में कि कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है। एंड प्रिवेंशन इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फॉर एज द मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन कंसर्न। ठीक है, हमको प्रॉपरली जो भी मेजर्स होते हैं बाय विच वी कैन प्रिवेंट द रूबेला इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स हमको फॉलो करने हैं। जहाँ पे हमको थोड़ा सा भी सस्पेक्टेड रहता है कि कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन हो सकता है तो वहाँ पे हमको प्रॉपरली मैनेजमेंट भी करना है। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूडिंग दी रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशन, टेस्टिंग ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन फॉर रूबेला इम्यूनिटी एंड प्रॉपर काउंसलिंग रिगार्डिंग अवॉइडिंग दी एक्सपोजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे हम वीमेन को पहले ही इम्यूनाइज कर सकते हैं और प्रेग्नेंट वीमेन का टेस्टिंग कर सकते हैं फॉर दी रूबेला इम्यूनिटी एंड प्रॉपर काउंसलिंग करना है रिगार्डिंग अवॉइडिंग दी एक्सपोजर। ठीक है, हम प्रॉपर काउंसलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर रूबेला इन्फेक्शन हुआ है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टाइम वीमेन में तो वो इन फ्यूचर जो है मीन्स आगे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बेबी में किसी भी टाइप का कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है, तो इसलिए हमको प्रॉपरली काउंसलिंग करना है। सो दिस ऑल आर अबाउट द रूबेला इन्फेक्शन।